जी आया नूं प्यारे विद्यार्थियों 10th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन नोट्स पार्ट 3। सो तुसी सारे अपने नोटबुक ले लो, नाल पेन ले लो ते जिहड़े नोट्स तुहाडे लई बनाए गए ने उन्हां नूं नोट कर लेना। डायग्राम्स होणगे वो डायग्राम्स कॉपी डाउन कर लेनी है। एक्सप्लेनेशन दी जाएगी नाल उन्होंने ध्यान नाल सुनना है तो नाल कुछ गल्लां अकॉर्डिंगली तुसी वीडियो पॉज करके उन्होंने नोट कर लेनी है, ठीक है। सो जी डायग्राम्स की चीज़ां ने या जो कुछ न्यूमेरिकल टाइप चीज़ां ने वो एक्सप्लेन की जाएगी, उन्होंने बड़े ध्यान नाल सुनना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिफ्रैक्शन लाइट सीम्स टू ट्रेवल along straight line paths in a transparent medium. However, when light travels obliquely means at an angle, from one medium to another. Within a medium, it travels along a straight line, but now we are talking about two media, that is from one transparent medium to another transparent medium obliquely. ठीक है जी। Then what happens? The direction of propagation of light in the second medium changes. वो direction change हो जाती है. And this phenomenon is known as refraction of light. Refraction is due to change in the speed of light as it enters from one transparent medium to another. जो refraction है, that is the change in the direction of its travel or its propagation. It is due to the change in the speed of light. This is because light travels at different speeds in different media. Media is the plural of medium. अर्थात अलग अलग मीडिया विच लाइट की स्पीड अलग अलग होंगी है। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू मस्ट कीप इन माइंड कि अंडरलाइंग कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। मतलब कि हवा विच डिफरेंट स्पीड है, ग्लास विच डिफरेंट स्पीड है, ग्लास अपना कैरोसिन विच डिफरेंट स्पीड है, डायमंड विच डिफरेंट स्पीड है, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, आगे चलिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ਇਹਦਾ मतलब है कि रिफ्रैक्शन इज गवर्नड बाय टू लॉज। जिस तरह से रिफ्लैक्शन के लॉज पढ़े सी वो दो हैगे ने, इसी तरह रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ हैगे ने, ठीक है। सो द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द इंसीडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया at the point of incidence all lie in the same plane. This law is quite similar to the law of reflection, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ incident ray, reflected ray and the normal lie in the same plane. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, instead of reflected ray we have refracted ray and we are talking about the interface of two transparent media at the point of incidence. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि पॉइंट ऑफ इंसीडेंस एट द रिफ्लैक्टिंग सरफेस, ठीक है, इन्ना ही फर्क है। अगला जो लॉ है वो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन इज अ कांस्टेंट। हुण यह बड़ा बड़ा फर्क है। इन केस ऑफ रिफ्लैक्शन वी लर्नड दैट एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस to the sine of angle of reflection it is a constant, and for the light of a given color क्योंकि it varies from color to color। बच्चा देखो एक गल इंपॉर्टेंट है कि the speed of light, white light in air or for all colors it is same, but other than air, other than vacuum, in glass or water or something, different colors of light have different speeds। मतलब कि within the medium also different colors have different speed। इस करके क्या है, for the light of a given color, अर्थात जी वाइट लाइट है साड़ी सन तो आती है, it has got 7 colors, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है।
and it has been seen that the red color it moves the fastest and ਜਿਹੜਾ violet color ਹੈਗਾ it moves the slowest in a given medium. ठीक है, so थोड़ा याद रखना है because red light has a greater wavelength, so it has got more speed in a given medium. ठीक है, and for the given pair of media, एक जो pair of media है air glass, air water, water glass or water diamond, whatever, so जो for a given pair this sign of angle of incidence and the ratio of sign of angle of refraction it is a constant. ठीक है, आगे चलिए. Law number 2 which we just mentioned is also known as Snell's law. Snell is the name of the scientist. ठीक है, Snell's law of refraction and is true for angle I, that is angle of incidence greater than 0 or less than 90 degree. That means provided that the angle of incidence lies between 0 and 90 but not equal to 0, not equal to 90, then this law is applicable. ठीक है, it is true for these figures of I. If I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, then mathematically law का की मतलब हो गया sin I upon sin R excuse me is equal to constant, and this constant is known as Ri or refractive index. This index जो है constant है ਇਹਦਾ जो constant आएगा ਇਹਦਾ नाम है refractive index. This constant value is called the refractive index of the second medium in which R is being mentioned, जिस refraction हो रहा है जिस medium with respect to the first medium. Being the ratio of two similar quantities Ri, that is refractive index, has no units because it's a ratio. Sin I is also angle, sin R is also angle, so both quantities are same. So Ri, refractive index, does not have any units. जिस तरह distance ਦੀ unit हैगी है या लंबाई ਦੀ unit हैगी है मीटर, है ना, temperature ਦੀ unit हैगी है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, है ना, करंट ਦੀ unit हैगी है एम्पीयर, एरिया की यूनिट हैगी मीटर स्क्वायर. सो इस तरह मतलब कि जो डेंसिटी की यूनिट हैगी है मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरह आर आई दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फिगर. ठीक है, ओके आगे चलिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिटेल्स देखिए उनकी है. अ रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली at an angle, obliquely means at an angle, from one transparent medium into another changes its direction in the second medium. We are repeating the same thing. ठीक है, refractive index is a measure of the extent of the change in direction that takes place in a given pair of media. बल्कि refractive index ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ कि जो direction change ਹੁੰਦੀ है वो किस हद तक change ਹੁੰਦੀ है, to what extent it changes. Greater the refractive index, greater will be the deviation, greater will be the shift from the original direction of incidence. ठीक है, और जो इंसिडेंट रे हैगी है ਉਹਦੀ जो डायरेक्शन है वो तो उन्ना ज़्यादा डेविएशन होएगा. ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा. The refractive index is also related to the relative speed of propagation of light in different media. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ पहले कि लाइट ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया. सो ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ कि ਲਾਈਟ ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स. सो ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ इज आल्सो रिलेटेड टू दी relative speed of propagation of light in different media because light travels with different speeds in different media. आओ देखिए किस तरह रिलेटेड है. Okay, light propagates fastest in vacuum with speed of 3 into 10 to raise power 8 meters per second. ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ. ਇਨ 에ਅਰ ਦਿਸ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਮਾਰਜਨਲੀ ਲੈਸ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ दैट इन वैक्यूम. सो इस करके फॉर ऑल प्रैक्टिकल परपजेस एयर ਦੇ ਵਿੱਚ also we take the speed as 3 into 10 to raise power 8 meters per second. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ कि you can say that for all practical purposes or for the purposes of our calculations or in this context chapter वास्ते
एयर एंड वैक्यूम आर मोर और लेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट आर सिनोनिम्स। सो चाहे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की जाए चाहे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की जाए, वी विल टेक दिस फिगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह याद रखना है कि बेशक एयर दे विच स्पीड थोड़ी ये तो घट है पर वो बहुत घट है, मार्जिनली लैस। सो दिस स्मॉल डिफरेंस कैन बी सेफली इग्नोर्ड। इनू मतलब कि इनू इग्नोर किया जा सकता है, नज़रअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, बट द स्पीड इज़ मच लैसर इन ग्लास और वाटर। पर ग्लास वाटर विच इस तरह नहीं है, एयर विच तो बहुत थोड़ा फर्क है, पर ग्लास और वाटर विच या होर कोई मीडियम दे विच है ज़्यादा घट जाती है। The value of the refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in the two media as given below. Refractive index ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਨਿਊ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਊ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ n ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ n ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਸ 21 ਨੋਟ ਸੌਰੀ 21 21 ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 21। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ 2 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1, मतलब कि नाम है मीडियम का एक नाम देता कोई, वो कुछ भी हो सकता है। सो ਇਹਦਾ मतलब कि इट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखो बिकॉज रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस इन मीडियम 2, दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पैक्ट टू 1। अगर यह चीज़ मैं उल्टा देवां, इन करदा 1 2 तो इत्थे हो जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा, फिर थल्ले 1 आ जाएगा। एंड इन दिस केस when light is entering from medium 1 to medium 2। ठीक है, आओगे चलिए ये देखो डायग्रामेटिकली इस तरह है। मीडियम 2 अपना ग्लास है, इट्स अ ग्लास स्लैब एंड मीडियम 1 इज एयर। ठीक है, सो लाइट कम्स फ्रॉम हेयर, अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम हेयर, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट हैज चेंज द डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन चेंज हो गई and this is the angle of refraction. So this change is from the original direction of the incident ray, उत्थों दी है इदा बेंड हो गई and this angle is known as refraction। ठीक है, हुण किस तरह कैलकुलेट करांगे, न्यू 2 1 that is the refraction of medium 2 which is glass with respect to air, speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2, this is the formula। सो सिंप्लीफाई कर लिए v1 अपॉन v2, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ऐसे पहले स्टडी कर चुके हैं इन सेकेंड लॉ विच इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सो सानू अगर इस तरह दिता हो गया दो चीज़ 4 चीज़ां दी हैं, ये जो 3 चीज़ां दी हैं तो चौथी 4th वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, यह भी गल ख्याल रखनी है। If it is air, we know that it is 3 × 10⁸ 8। ठीक है, 3 × 10⁸8। हुण अगर यह दी है तो असी यह दी है तो असी यह कट सकते हैं, या इफ दीज टू आर गिवन एंड दिस इज 3 × 10⁸ सो वी कैन फाइंड आउट दिस आल्सो। तो अगर यह दो चीज़ां दो जो एक चीज़ दी है तो सानू वी कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो। सो यह याद रखना बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड्स दे आर रिलेटेड है एंड इट इज आल्सो रिलेटेड टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगेन हेयर व्हेन लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। अगर यह उल्टा हो जाए कि यह ग्लास स्लैब ऊपर आ जाए एयर थल्ला आ जाए, मतलब कि इनू मैं कर देवां 2 तो इनू कर देवां 1, या मतलब लाइट जी है इट इज गोइंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरह यह इंसीडेंट रहे तो रिफ्रैक्टेड रहे। ठीक है ना, सो फिर की हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 तो 2 तो इतने आ जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा, थल्ले 1 आ जाएगा, इतने v2 अपॉन v1 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह मतलब कि यह जोड़ा है अपना जो फॉर्मूला है इनू इस तरह चंगी तरह समझ लेना है। ठीक है, आगे चलिए। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम एंड इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और सिंपली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यह बच्चे तो है कि जरा वे कि एयर और वैक्यूम इज कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड, मतलब कि विद रिस्पैक्ट टू दिस, जिस तरह थर्मामीटर अभी टैंपरेचर विच असी 0 नूं एक रैफरेंस ले लेंगे विद रिस्पैक्ट टू 0 टैंपरेचर कितना। ठीक है, सो एयर नूं मतलब कि एक मन के चले कि एक स्टैंडर्ड बिकॉज एयर इज ऑलवेज देयर। सो एयर दे रिस्पैक्ट टू अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया जाए तो फिर असी एज्यूम कर लें कि दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
फिर कहने की जरूरत नहीं है विद रिस्पैक्ट टू दिस बिकॉज इट इज़ एयर, इट्स अंडरस्टूड। ठीक है, तो इफ सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट विच जो एयर विच जो लाइट की स्पीड है वह सिंबल नॉर्मली सी है, वी यूज़ इट है ना। सो इनू 3 × 10⁻⁸ मीटर लैके चलांगे एंड v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, फिर हो जाएगा m। हूँ अगे ए लगाने की लड़ नहीं, ए फॉर एयर, इट इज़ अंडरस्टूड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जस्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय न्यू m स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in the medium is equal to c upon v। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ 1 2 v1 v2 ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ because this is the speed of light in air fixed 3 × 10⁸. If I know the velocity of light in that medium, I can find out the refractive index. And if I am given the refractive index of any medium and they tell me to find out the speed of the light in that medium, so I can straight away find out। मैं की करांगा है देखो, इफ आई वांट टू फाइंड द स्पीड, सो v इतने चला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थले आ जाएगा। सो आई डिवाइड 3 × 10⁸, दैट इज c बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आई गेट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, आगे चलिए ये देखो इतने तुहानू वही चीज़ थोड़ी एग्जाम्पल राही समझावांगे। फॉर एग्जाम्पल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर न्यू w for water is 1.33। Experimentally it has been found it is 1.33। ठीक है, this means that the ratio of the speed of light in air and the speed of light in water is equal to 1.33। ਇਹਦਾ मतलब है, in other words the speed of light in air is 1.33 times faster than in water, or in other words speed of light in water is 1 by 1.33, उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, is equal to 0.752 times slower than air। अगर greater than 1 है उन्ना फैक्टर आएगा फिर तो इट इज़ मोर, एंड वी नो दैट स्पीड इन एयर इज़ दी फास्टेस्ट। तो जो वाटर विच स्लो हैगी है तो दिस फैक्टर हैज़ टू बी लेस दैन 1, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.33। सो जो मैं 0.752 ਦੇ ਨਾਲ 3 × 10⁸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ 에ਅਰ, तो वाटर विच लाइट की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, हम अगला देखिए एग्जांपल। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास न्यू g is 1.52। दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.52 इज इक्वल टू 1.97 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैं तुहानू कहा सी ना जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हैगी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਨੂੰ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो की आ जाएगा वो स्पीड आ जाएगी उस मीडियम के विच। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि क्राउन ग्लास ਦੇ ਵਿੱਚ लाइट की स्पीड हैगी है। सो कितना आसान है बच्चों, यह सवाल आ सकते हैं, 2-2 नंबर के सवाल आ जाते हैं इदा के। ठीक है, आगे चलिए एक एग्जाम्पल होर ले लीए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दैट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42 and the speed of light in air is 2.42 times more than in diamond। मतलब कि डायमंड तो 2.42 टाइम्स ज़्यादा स्पीड हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एयर ਦੇ ਵਿੱਚ, और the speed of light in diamond is 3 × 10⁸ divided by 2.42 is equal to 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड आ गई ना डायमंड की स्पीड, डायमंड ਵਿੱਚ लाइट की स्पीड आ गई। एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ 3 × 10⁸, पर वैक्यूम दे डायमंड विच हैगी 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, क्योंकि बाकी विच तो घट हैगी है। तो ठीक है ना, तो जिहड़ा है मीडियम के जी स्पीड है वो आती है डिनोमीनेटर विच, तो न्यूमरेटर विच आएगा, एंड दिस इज ऑलवेज ए स्पीड तो ज़्यादा तो स्पीड कोई हो ही नहीं सकती। सो इस करके जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, यह कभी भी 1 तो घट नहीं होएगा, यह याद रखना। ठीक है, आगे चलिए यह देखो बच्चों, हूँ तुहानू एक चीज़ होर दसी है। एग्जाम्पल ने देखो एयर टू वाटर, मैं इतने एरो नहीं पाया, इदा मान लो एयर टू वाटर आ रही है, एयर टू ग्लास आ रही है, तो वाटर टू ग्लास आ रही है। ठीक है, सो इनू असी किद्दां लिखांगे, इनू लिखांगे न्यू वाटर, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। इस तरह ही है ना। तो यह जोड़ा
refractive index of glass is equal to speed of light in air or vacuum divided by velocity of speed of light in glass। ਹੁਣ देखो बच्चों इत्थे ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ है ਹੁਣ एयर नहीं हैगी, जिथे एयर है उत्थे you don't have to write air because it is absolute or it is the refractive index of the medium water or glass। पर इत्थे वाटर है, इत्थे ग्लास है। इन दिस केस वी राइट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यह की हो जाएगा स्पीड हूँ थे स्पीड ऑफ एयर नहीं आएगी, हूँ स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ਇਹ बड़े ध्यान ਨਾਲ देखना बच्चों, ਇਹ चीज़ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ और ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ देखो बच्चों दिस एक्सप्रैशन कैन बी रिटन लाइक दिस है। देखो अगर मैं ਇਹਨੂੰ 1/VW करना है तो मैं थले ले आवांगा, तो ਇਹਨੂੰ ਜੇ VG ਨੂੰ मैं ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ तो मैं 1/VG कर ਦਾਂਗਾ। देखो सो दिस एक्सप्रैशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटन एज 1/VG डिवाइडेड बाय 1/VW। लिख सकता ना मैं इस तरह। देखो मैं VW तो VG है, मैं इनू उपर ले आना चाहना न्यूमरेटर में, तो इनू मैं थले लैके आना चाहना। सो मैं इस तरह कर देता, यदा रेसिप्रोकल करता, यदा रेसिप्रोकल कर देता। इट इज सेम थिंग। नाउ मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। हुण देखो बच्चों कि C/VG के बराबर है, C/VG इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इतने लिख देता। ओके तो यह कि बराबर है C/VW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मैं इतने लिख देता। यदा मतलब यह होया बच्चों कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यह बड़ा बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्हू चंगी तरह समझ लो। ठीक है, यदा मतलब की होया कि इफ आई एम गिवन दिस एंड गिवन दिस, तो मैनू कहते हैं कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आई जस्ट राइट लाइक दिस NGW इज इक्वल टू RI ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय RI अपॉन वाटर। ठीक है, आगे चलिए। हूँ देखिए एक चीज़ होर है, देखो दिस वी जस्ट अंडरस्टूड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ਇਹਦਾ मतलब है कि जो पहले है इतने G वो न्यूमरेटर में आएगा, तो जो सैकेंड है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज जी मैं उल्टा कर देव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। सो जो पहले है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो दूजा है वो इतने है। ठीक है ना, जस्ट रिवर्स हो गया। देखो हुण देयरफॉर NG एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, क्योंकि ये बराबर है ये बराबर है। हुण NG इन्ना कट गया, इन्ना कट गया इज इक्वल टू 1। यदा मतलब की है कि दिस इज इक्वल टू 1, यदा मतलब होया इत्थे आ गया थले। सो NGW इज इक्वल टू 1 बाय दिस न्यू WG। यदा मतलब बच्चों वे कि इफ आई एम गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर उन्होंने दिता है तो कहते फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। सो मैं की करना है, आई हैव टू जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, मतलब कि NGW मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह भी सवाल बच्चों न्यूमेरिकल एक नंबर के दो नंबर के आ सकते हैं, एंड पूरे स्कोरिंग होंगे ने, मतलब कि आंसर लिखो तो पूरे बटा पूरे नंबर थोड़े आ गए। ठीक है, आगे चलिए। वी नो दैट साइन I that is साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थले आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। इफ एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू 0, हूँ स्पैशल केस है, असी हाल तक गल की है कि रे ऑफ लाइट और लाइट रे इज कमिंग ओब्लिकली। हूँ भी देख रहे हैं कि लाइट जी है और रे ऑफ लाइट इज कमिंग परपेंडिकुलरली नॉर्मली, दैट इज द एंगल ऑफ इंसीडेंस इज 0। तो फिर की हो जाएगा साइन 0 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन R। नाउ साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो साइन R इज इक्वल टू 0 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ਨਾਓ 0 upon anything is 0, ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 0। ਸੋ ਸਾਈਨ r is equal to 0, and if sin anything is equal to 0, then that anything is also 0। अगर sin theta is 0, theta is 0, sin r is 0, that means r is 0, angle r is 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ thus if angle of incidence is 0, then angle of refraction is also 0। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ, ਅੰਡਰ ਵਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ नो ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ कि when angle of incidence is 0, there will be no refraction। और देखिए ये देखो डायग्राम के नाल देती है, रे ऑफ लाइट आ रही है नॉर्मली परपेंडिकुलरली, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, दिस इज 90 डिग्री, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0। द रे ऑफ लाइट विल पास स्ट्रेट थ्रू बोथ द मीडिया, दोनों मीडियम के विचों स्ट्रेट जाएगी एंड देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। इफ इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, देयर इज नो बेंडिंग एंड द रेज pass through along a straight line, because if angle of incidence is 0, then angle of refraction is also 0। आगे चलिए, ओके ਹੁਣ आगे बच्चों optical density। optical density is the measure of the ability of a medium to refract the light। कितना रिफ्रैक्ट कर दिए उधरों पता लगता है कि optical density कितनी है। optically denser medium हैज़ ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिन्ना ज़्यादा डेंसर होएगा ऑप्टिकली उन्ना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा, एंड रिफ्रैक्ट्स द लाइट मोर, तो ज़्यादा बेंड करेगा। ज़्यादा तगड़ा है मतलब ऑप्टिकली डेंसर है ना, ऑप्टिकली हैवियर है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, लाइट की डायरेक्शन ज़्यादा डिविएट करेगा। ऑन दी अदर हैंड ऑप्टिकली रेयरर मैंने मतलब ढिला, मतलब कि थोड़ा लाइटर कह लो, ऑप्टिकली लाइटर। Rarer medium has smaller refractive index and refracts the light relatively by lesser amount। अगली गल है ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज मास डेंसिटी। उन्ना कन्फ्यूज नहीं करना, एक जी डेंसिटी असी फिजिकली यूज करते हैं दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। जिदा मैं कहूँ कि आयरन की डेंसिटी कॉटन तो ज़्यादा हैगी है, लैड की डेंसिटी उस तो भी ज़्यादा हैगी, आयरन तो भी ज़्यादा हैगी है। सो दोज आर दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, और ये मिक्स नहीं करना। मास डेंसिटी इज टोटली डिफरेंट, ऑप्टिकल डेंसिटी इज टोटली डिफरेंट। एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। जरूरी नहीं कि जो ऑप्टिकली डेंसर है वो फिजिकली भी भारा होएगा, जरूरी नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल देना तुम समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर दैन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस दैन वाटर। तुसी एक कोई कौली ले लो, कोई छन्ना ले लो, कोई बाटा ले लो, कोई कैन ले लो, पैन ले लो, और थोड़ा पानी पाओ तो वो उत्ते कुछ थोड़ी ड्रॉप्स वो पा दो कैरोसिन दियाँ, यू विल सी दैट कैरोसिन इज फ्लोटिंग ऑन दी वाटर, इट विल नॉट सिंक, इट विल नॉट मिक्स। वाई इज इट फ्लोटिंग? बिकॉज इट इज़ लाइटर दैन वाटर, इट मीन्स इट्स डेंसिटी इज लेसर दैन वाटर। पर जिले लाइट पास करोगे कैरोसिन विल रिफ्लेक्ट द लाइट मोर दैन वाटर। अर्थात बेशक कैरोसिन इज लाइटर दैन वाटर बट इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर दैन वाटर। सो इस करके ऑप्टिकल डेंसिटी नू फिजिकल जी मास डेंसिटी है वो कन्फ्यूज नहीं करना। ठीक है, आगे चलिए। द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर मीडियम दैन इन डेंसर मीडियम। असी तुहानूं कहा कि लाइट ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। सो जिहड़ा मीडियम डेंसर होएगा, जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होएगा, उहदे विच लाइट की स्पीड घट होएगी। जिहड़ा मीडियम रेयरर होएगा, जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट होएगा, वो लाइट की स्पीड ज़्यादा होएगी। ठीक है, दस अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन। रेयरर तो डेंसर जाएगी, डेंसर की स्पीड स्लो हो जाएगी एंड बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। वो स्लो हो गई है, बेचारी ढिली हो गई है तो ज़्यादा बेंड करेगी। ठीक है, व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, वो हल्का हो गया तो ज़्यादा तेज़ी ना जाएगी, इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल तो परे चली जाएगी, क्योंकि वो तेज़ हो गई है तो तेज़ी के नाल परे निकल जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। ये देखो हुण डायग्रामेटिकली यह चीज़ समझिए। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट आई बेंड हुई, ठीक है ना, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, बेंड हुई एंड इट हैज़ बेंट टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है,
देखो ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स दी इस गल बच्चों रट्टे ला लेने चंगी तरह टूवर्ड्स दी नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस दैन एंगल ऑफ इंसीडेंस है देखो यह ज़्यादा है तो यह घट है अगर इदा होंगे देखो इदा जावे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे बट इट हैज़ बेंट टूवर्ड्स दी नॉर्मल सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस दैन दी एंगल ऑफ इंसीडेंस हूँ उल्टा आ गया डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देखो डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल इतों परे चली गई है ओरिजिनल डायरैक्शन सी इतों दी परे चली गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर दैन दी एंगल ऑफ इंसीडेंस ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन एंगल ऑफ इंसीडेंस यह डायग्राम्स भी नोट कर लो जिहड़ी गल्लां लिखी गई चंगी तरह नोट कर लो थोड़ी जी गल्लां बच्चों इन्होंने चंगी तरह दिमाग च बिठा लेना थोड़ा सारा चैप्टर आराम के कवर हो जाएगा ठीक है आओ अगे चलिए यह देखो बच्चों असी ना हुण एक स्टडी करांगे तुहाडी किताब एक्टिविटी भी है एक्सपैरीमेंट टाइप हैगा तो इन्ना रिफ्रैक्शन की होर स्टडी हो जाएगी होर समझ आ जाएगा सो ABCD इज़ अ ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब या रेक्टेंगुलर इट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD ठीक है एंड ऑल सराउंडेड बाय एयर सो हेयर इज रेयर मीडियम एयर दिस इज डेंसर मीडियम ग्लास अगेन हेयर इज रेयर मीडियम ठीक है सो रे ऑफ लाइट EO दिस इज द इंसीडेंट लाइट इंसीडेंट रे वेरी सिंपल है देख लो चंगी तरह EO is incident ray N and dash is the normal to the interface AB ठीक है I1 is the angle of incidence ठीक है फिर उन लाइट रिफ्रैक्ट हो गई रेयर टू डेंसर इट हैज़ बेंट टूवर्ड्स दी नॉर्मल इधर आ गई ठीक है सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे O डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड R2 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास ठीक है बच्चों एंड M डैश इज द नॉर्मल टू द इंटरफेस CD फिर इतने देखो बच्चों हूँ अगर यह रिफ्रैक्टेड रे नाउ दिस बिकम्स इंसीडेंट रे फॉर दिस पेयर ऑफ मीडिया डेंसर टू रेयर तो यह हूँ डेंसर है यह रेयर है सो इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल है इतना नॉर्मल अब परे चली गई देखो उल्टी हो गई ठीक है एंड दिस रे O डैश H is known as emergent ray because it has emerged from the glass बाहर आई है बच्चों ठीक है it is known as emergent ray and this R2 angle is known as angle of emergence आगे नोट्स भी सारा आएगा ठीक है बच्चों and this is the extended dotted line it represents the direction of rotation of the incident ray जो ओरिजिनल डायरेक्शन हैगी वो हैगी है ठीक है बच्चों हूँ तो ही ध्यान में देखो दिस इज नॉर्मल एंड दीज टू आर पैरेलल इफ टू पैरेलल लाइन्स ते परपेंडिकुलर करांगे तो दोज परपेंडिकुलर्स विल आल्सो बी पैरेलल सो दिस इज पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल ते ए वाला एंगल दे विल बी इक्वल बिकॉज दे आर एक्सटर्नल alternate angles we know that the alternate angles of parallel lines are equal सो यह साढ़े हो गया यह हो गया पैरेलल हो गया यह मतलब कि एंगल ये बराबर हो गया दिस इज आल्सो इक्वल टू I1 यह सिर्फ वो वास्ते है ज्योमेट्रिकल प्रूफ वास्ते ठीक है सो दिस इज इक्वल टू दिस नाउ दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर सो दे आर आल्सो पैरेलल लाइन्स तो जो पैरेलल लाइन्स है तो CD इज द ट्रांसवर्सल जो CD ट्रांसवर्सल है तो फिर बच्चों दिस एंगल 90 प्लस I1 will be equal to this angle which is 90 plus R2 so 90 कैंसिल हो गया it means I1 is equal to R2 और R2 is equal to this angle ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि जड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस is equal to एंगल ऑफ इमरजेंस ठीक है बच्चों यह गल का ख्याल रखना है दूजी गल है कि दिस रे ऑफ लाइट इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसीडेंट रे बट इट डज नॉट कम अलॉन्ग द सेम लाइन इट इज़ लेटरली डिसप्लेस्ड मतलब कि इत्थों दी इत्थे शिफ्ट हो गई एंड दिस O डैश P
perpendicular distance between the emergent ray and the direction of incident ray is known as lateral displacement। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਵੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਇਟ ਅਗੇਨ 2-3 ਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਲ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਵੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਨੋਟਸ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। देखो, refraction through a rectangular glass slab. ABCD is a rectangular glass slab through which light is passing through. Very simple. The light ray undergoes change in its direction at points O and O dash. AB te CD te, O and O dash. Very simple. Both the points O and O dash lie on the surfaces separating two transparent media. उत्ते air ते फिर glass है AB ते फिर थल्ले CD ते ऊपर glass है ते थल्ले air है, ठीक है। N dash is normal to AB at O and M dash is normal to CD at O dash. Very simple. जो डायग्राम चे वही इतने लिखा है, ठीक है। The light ray at O enters from rarer medium to denser medium from air to glass. Very simple. Thus the light ray bends towards the normal. क्योंकि सानू पता है कि rarer to denser bending is towards the normal. Angle of refraction is less than angle of incidence. अभी सानू उसी उत्ते पढ़ चुके हैं कि when light is entering from rarer medium to denser medium, the angle of refraction is less than the angle of incidence. आगे चलिए। At O dash, the light ray enters from denser to rarer medium. उल्टा हो गया, ग्लास तो हवा जा रही है ना, ग्लास टू एयर। The light here bends away from the normal. Very simple. The angle of refraction is more than the angle of incidence. अभी गल ਅਸੀਂ पहले पढ़ चुके हैं। When light enters from denser to rarer, the angle of refraction is more than the angle of incidence. The ray EO is called the incident ray. Okay. OO dash is the refracted ray. Very good. O dash H is the emergent ray. तीन rays है, incident, refracted and emergent. The emergent ray is parallel to the direction of the incident ray. I have already explained to you. क्यों है? This is because AB is parallel to CD and the extent of bending of the ray of light at AB and CD is equal and opposite. मतलब कि जिन्नी बेंडिंग AB ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਬੈਂਡਿੰਗ CD ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ both the effects are nullified। ਇਸ ਕਰਕੇ emergent ray is parallel to the incident ray, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। However, the light ray is shifted sideward slightly or laterally displaced, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ laterally displaced from the direction of incident ray. The perpendicular distance O dash P is called the lateral displacement। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ emergent ray ਤੇ direction of incident ray ਵਿੱਚ perpendicular distance ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਹੈਗਾ lateral displacement। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ, I1 is equal to angle of incidence, R1 is equal to angle of refraction and R2 is equal to angle of emergence। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਕਵਰਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਜਨਰਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 4, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸਿਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, first we talked about the reflection in general, then we talked about reflection by convex mirrors, reflection by concave mirrors। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। we have learnt about what reflection is, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗਾ that will be about the refraction through spherical surfaces including, which means concave lenses as well as convex lenses। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਸਰਵ 3-fold ਪਰਪਸਿਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣੇਗੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ
ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।